description, we told that in the synchronous generator, our system is a synchronous generator connected with the transmission line, and when there is some disturbance in the lines, then in addition to the steady state signal, there is a natural signal also. Means this is the current. This current is given by K A sin omega t plus I. Means this is the steady state response, or called the force response, which is because of the generator is giving the power frequency, and because of the rotation of the generator at 50 hertz at synchronous speed. So because of that, there is a force response, this signal, and in addition to that, during disturbance, this signal is also there. This signal will have the frequency omega n, means which is the function of the parameters of the transmission lines, and it is given by 1 by omega n is given by 1 is equal to 1 by under root LC. L is the inductance of the line, C is the capacitance of the line. Capacitance may be from the inner line capacitance or the external capacitance, net capacitance of the system. And this system, which is called the natural system, natural signal, with decade. Here it is a depending, since it is a capacitor, that's why the frequency is omega n given by 1 by under root LC. Otherwise, if it is only inductance, then it will be the DC circuit, DC signal. And this signal called the natural signal decays because of this present V is equal to e to the power minus j omega n t. Because of this signal decays, subjected to the value of this G is damping if this is positive, then we can say the overall system is decaying. And this natural component omega n given by 1 by under root LC, this can be represented after multiplying omega 0 on this side and this side, you will get XC by XL. So depending upon this, if say for example here XC is a 50% compensation of this, means if the series capacitor connected in series with the transmission line, if it is a 50%, then under root of 0.5, it will be the and multiplied by 50. Here omega 0 is the 50 power frequency, then this will be 44 hertz, 44 or 44.5 hertz. And say for example, if it is if it is a 50% here XC under root of 0.5 multiplied by 50, it will be 35 hertz. If it is 80% means 0.8 under root of 0.8 multiplied by omega 0, that is the 50, it is a 44.5 hertz. Similarly, if it is say 16%, XC is equal to 16, then under root of 0.6 is 0.4 multiplied by 50 means 20 hertz. So in this way, and similarly, let us have 5% compensation. If it is a 5%, 0.05, so under root of 0.05 multiplied by this omega 0, it will be the 11 hertz. In this way, the natural component of the signal, natural signal with the natural frequency will be from any range from 1 hertz to the power frequency 50 hertz in the two, any depending upon what is the level of compensation. And okay, so now because of this, now in the stator of the synchronous machine, there are two signals. One is this signal, steady state signal, and for a certain duration of time, this natural component of the signal. Now this natural component of current signal, as I told, depending upon the level of series compensation, its speed may be anything between the 1 hertz to the 49 hertz. So when the speed of the, so in the stator will have the flux with this frequency, and accordingly you can say the speed 120 f by p. You can say the speed can be any speed from 1 hertz according to 1 hertz. Say 120 f by f is equal to 120 by p. P means 4 pole. If it is 4 pole, so 40 rpm to 1500 or 1400 something rpm.
So 40 to 1400 something RPM may be the speed of the rotating flux in the stator. This is the additional signal. Now what will have the effect of this signal on the working of the synchronous generator? So before describing that, let us understand, before starting that, let us understand what is the induction motor. Although you understand what is the induction motor, you studied the induction motor in very much detail in your beta classes, but certainly here some review. If I give some review, it will be better to you to understand the SSR problem. So this is the equivalent circuit of the induction motor. Have you studied this equivalent circuit of the induction motor in your early classes? Yes, sir. This you know. And this, what is R1? And this is the stator resistance. It is the equivalent circuit on per phase basis. Per phase basis का equivalent circuit है. R1 is the resistance of the rotor, stator, and X1 is the reactance of the stator. And this GI, iron loss component of the conductance, and VM, it is a susceptance, and which is for the magnetizing current to flow into the system. And this is the reactance of the rotor side, X2 dash. And what is this R2 dash by S? ये क्या है? What is the R2 dash by S? What is the R2 dash by S? Who will tell? Mr. Jagveer, आप बताएंगे क्या है? रोटर रेजिस्टेंस. Yes, बोलिए. The rotor resistance. Rotor resistance is R2 dash. But what is R2 dash by S? The whole. R2 dash is the rotor resistance, but R2 dash by S is, what is this? ये क्या चीज है? मिस्टर जगवीर, आप बताएंगे इसे? सर क्वेश्चन रिपीट करेंगे सर? हैं, पार्डन? सर एक बार रिपीट करना सर, क्या बताना है सर? What is the R2 dash by S in this equivalent circuit of induction motor? What it represent? ये किस चीज को represent कर रहा है? सर ये ट्रांसफर्ड वो है सर, रेजिस्टेंस है सर, प्राइमरी सेकेंडरी में करते हैं सर. नहीं, कार्तिके, मिस्टर कार्तिके. स्लिप सर. ऐसी स्लिप मैं ये पूछ रहा हूँ, व्हाट इज R2 dash by S? रोटर लॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए है सर शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि R2 को स्प्लिट करते हैं लॉस को सर, रोटर में जो लॉस होंगे सर. हैं, पार्डन? रोटर में सर जो लॉस होंगे इंडक्शन मोटर. नहीं, लॉसेस तो ये GI, रोटर जो लॉसेस हैं वो यहाँ से रिप्रेजेंट हो रहा है, GI. व्हाट इज दिस? दीक्षा? यस सर. हाँ, व्हाट इज दिस R2 dash by S? सर R2 तो जो है वो रोटर रेजिस्टेंस है, पर हमने ठीक है, ओके. S स्लिप है. R2 dash by S क्या हुआ? तो प्राइमरी साइड शिफ्ट कर दिया है ना, वही R2 डैश. नहीं, R2 को R2 डैश में शिफ्ट, R2 ओके, शिफ्टिंग की बात नहीं है. शिफ्टिंग तो ठीक है, R2 था रोटर रेजिस्टेंस को शिफ्ट कर दिया तो R2 डैश हो गया, लेकिन मैं पूरा पूछ रहा हूँ R2 dash by S क्या है? R2 dash by S is the electrical equivalent of the mechanical load connected on the shaft. इंडक्शन मोटर के शाफ्ट में जो मैकेनिकल लोड लगा है उसका इलेक्ट्रिकल में इक्विवेलेंट इतना है. मतलब मैकेनिकल पे जो पावर कंज्यूम होगा, इलेक्ट्रिकल में जो यहाँ निकालेंगे I2 R2 dash by S, ये हमारी पावर इलेक्ट्रिकल पावर है, वही पावर मैकेनिकल में कन्वर्ट हो जाएगी. सो इट इज द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ द मैकेनिकल लोड कनेक्टेड ऑन द शाफ्ट. ओके. And S is the slip. Slip is the difference between rotor and rotating flux speed, rotating flux and rotor speed per unit per unit of the synchronous speed. मतलब क्या हुआ? अब इसका बेसिक इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल क्या था? If you give the 3-phase supply to the stator, there is rotating flux in the stator, and because flux is rotating into the stator, there is in the rotor there will be induced EMF, because rotor is also having similar type of winding, so rotor will have the induced EMF. Because of it is a closed circuit, induced current will be produced, and because the current, there will be a torque.
Because of the current, there will be torque into the rotor, and because of that torque, this rotor start to rotate, and the speed of the rotor rotating flux is given by speed of the rotating flux is called the flux speed, which is governed by the F0. F0 is the power frequency, and it is given by 120 F by P. And the speed of the rotor will be slightly less than the speed of the rotating flux. And both are rotating, rotating rotor and rotating flux. And this S is thereby this S is the NS minus N. NS, what is NS? NS is the speed of the rotating flux in the stator. N is the speed of the rotor, and this. So this is the slip. This is the equivalent circuit. Okay. Now what is this? This is the characteristics of the induction motor. If you see this, ये भी आपने पहले पढ़ा है कि नहीं? जग भी पढ़ा हुआ है कि नहीं? हेलो, हाँ मिस्टर जगबीर, यस सर, हाँ ये पढ़ा हुआ है characteristics of the induction motor. यस सर, पढ़ा तो हुआ है हाँ। सर, कभी ध्यान नहीं कर ज्यादा। ध्यान रखने की जरूरत है, ये नहीं पता होगा तो और आगे चीजें नहीं पता लगेगा. So this is the induction motor characteristics. Induction motor work in this range. Synchronous speed to the max, this speed here up to here. If it is 1500 RPM, it work 1400, 1300, 1200 in this region. And if the speed of the rotor, this is an unstable region, if the speed of the rotor is negative means rotating flux is moving say clockwise direction and rotor is moving in the anti-clockwise direction. Because maybe in some region it may happen, जैसे अभी क्या होता है, रोटर रोटेटिंग फ्लक्स ऐसे घूम रहा है से क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और in the when it is working as induction motor, then rotor is also rotating in the clockwise direction. But if you change the ABC sequence of the phase sequence, A B C, B और C को चेंज कर दें तो AC भी हो जाएगा. The rotating flux will be in the anti-clockwise direction. When rotating flux in the anti-clockwise direction, rotor is in the clockwise direction. तो स्पीड क्या हुई? स्पीड नेगेटिव हो गई ना उसके कंपैरिजन में. In that case, it will behave. Speed is negative. During that time, there is the generated torque is less than this. This is the braking region. तो हमारा ब्रेक लगेगा. Speed will be negative. Speed is negative, so it will be the at that time this torque will act as a to break the system, क्योंकि स्पीड को कम करेगा. And if the speed is greater than the synchronous speed, if this speed is greater than the synchronous speed, then you see what happens. When you see ns is greater than n is greater than this speed, rotor speed is higher than rotating flux speed. अगर रोटेटिंग फ्लक्स से अगर हायर हो गई रोटर, इसी कारण से अगर रोटर की जो फ्रीक्वेंसी है, रोटर में जो सिग्नल आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए, जो कि अभी आप पढ़ेंगे एसएसआर में, इसी कारण से अगर ये एनएस चेंज हो जाए, रोटर फ्लक्स की स्पीड चेंज हो जाए, तो रोटर 1500 पे ही रन कर रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा. तो ये नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा, ये एस विल बी नेगेटिव. व्हेन एस इज नेगेटिव हियर, दिस पोर्शन विल बी नेगेटिव. व्हेन दिस पोर्शन विल बी नेगेटिव, इसका मतलब क्या होगा, दिस पोर्शन विल बी नेगेटिव. इट मींस R2 dash by S, it is a negative. Negative means if it is positive, it consume I square R power. इस इलेक्ट्रिकल पावर क्या I square R, और नेगेटिव हो गया तो माइनस I square R. तो इलेक्ट्रिकल में माइनस I square पावर कंज्यूम करेगा. इसका मतलब क्या है, पावर ये कंज्यूम नहीं करेगा, बल्कि ये रोटर की मैकेनिकल की जो पावर थी वो बैक टू सप्लाई में पावर सप्लाई करेगा. तो सप्लाई करेगा, इट मीन इट विल नॉट एक्ट एज ए मोटर बट इट विल वर्क एज ए इंडक्शन जनरेटर. ये इंडक्शन मोटर ना होकर इंडक्शन जनरेटर हो जाएगा, और शाफ्ट की जो मैकेनिकल पावर था उसे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके और बैक करेगा, हमारा ग्रिड के अंदर भेजेगा. इट विल बिहेव एज इंडक्शन मोटर, इंडक्शन जनरेटर. तो वो ही यहाँ पे दिखा रहे हैं. इफ एन इज ग्रेटर देन एनएस, एनएस से ज्यादा है तो टॉर्क ये नेगेटिव हो जाएगा. मतलब नेगेटिव का मतलब क्या है, कि टॉर्क या पावर को कंज्यूम नहीं करेगा, टॉर्क लेगा नहीं, टॉर्क देगा. मैकेनिकल का जो टॉर्क है वो इलेक्ट्रिकल में वापस जाके और इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर देगा. ओके, एंड फ्रीक्वेंसी, एंड दिस यू नो. एंड व्हेन नाउ
इज इट क्लियर अप टू नाउ? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. Now again, what is the frequency? You know what is the frequency of the current of the rotor circuit? देखिए एक स्टेटर सर्किट होता है, एक रोटर सर्किट होता है. रोटर में जो करंट होगा, the current frequency is F2 given by S into F. ये पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है? Frequency of the rotor current is S into F, where S is this, ns minus n by ns, and what is S? ns, and what is ns? 120 f by p. ns क्या था? ns is the speed of the rotating flux. रोटेटिंग फ्लक्स. अब हमारे केस में सपोज रोटेटिंग फ्लक्स की फ्रीक्वेंसी fn है. रोटेटिंग फ्लक्स की फ्रीक्वेंसी fn है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस fn. हमारा पावर स्टेटर में पावर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल नहीं बात कर रहा हूं मैं. स्टेटर में ये सिग्नल का बात कर रहा हूं mn, जो इसकी वजह से आया है. बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस दिस सिग्नल इज आल्सो अवेलेबल इन द स्टेटर. बिकॉज ऑफ दिस सिग्नल ओमेगा n there is this frequency may be any 1 hertz to the 49 hertz का सिग्नल हो सकता है. This signal is available in the stator. Now because of this signal, here you see this is the rotating flux. Rotating flux means 120 f by p. ये ns हो गया. और रोटर का स्पीड, और रोटर कितने स्पीड पे रन कर रहा है इस केस में? जो अब हमारा सिंक्रोनस जनरेटर था उसमें रोटर कितनी स्पीड पे रन कर रहा है? कैन यू टेल? सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा. हाँ, रोटर तो सिंक्रोनस पे ही चल रहा है, स्टार्टिंग से ही चल रहा है. क्यों सिंक्रोनस पे चल रहा है? क्योंकि वो हमारा टरबाइन से कनेक्टेड है, और टरबाइन हम इंजन के थ्रू या प्राइम मूवर के थ्रू 1500 आरपीएम पे रन कर रहे हैं. दैट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय अस. वो 1500 आरपीएम पे चल रहा है, तो उसका 120 एफ बाई पी 1500 आ गया. ये एनएस ही आ गया. So if you do this everything will be removed. Only this will be fn minus this fn cancel, fn minus this. fn is the natural frequency component. अगर सपोज करिए अगर ये 50 हर्ट्ज था, तो fn क्या हो गया? 35 हर्ट्ज. और ये 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज, तो 35 माइनस 15 हर्ट्ज, 15 हर्ट्ज का हमारा रोटर करंट होगी. 15 हर्ट्ज की रोटर करंट होगी. माइनस में है, इसलिए ये इंडक्शन जनरेटर की तरह काम करेगा. 15 हर्ट्ज की करंट होगी उसमें. ओके, नाउ कम टू द मेन. अब देखिए इसी वजह से क्या हो रहा है, रोटर नाउ इन द स्टेटर देयर इज ए रोटेटिंग फ्लक्स विद द स्पीड ऑफ 15 हर्ट्ज. If it is 50% compensation, तो स्टेटर में हमारा जो फ्लक्स है नेचुरल कंपोनेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी का, द सिग्नल ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो 15 हर्ट्ज है. not 15 hertz, 35 hertz, sorry. So at 50% series compensation omega is 35, and in the stator there is a rotating fluxes of 35 hertz. इसकी वजह से स्टेटर में जो 35 hertz का सिग्नल है उसकी वजह से रोटर के अंदर जो करंट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी अभी निकाला, क्या होगा? 15 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज. That's why it is called the complement. It is called as a complement. So you see here 50 minus Fn. It is saying here it is called the complementary frequency. तो रोटर में जो करंट हो गई वो 15 हर्ट्ज की हो गई. Now okay, is this point clear up to now? Yes, अब sir. हाँ, now you see rotor resistance is R2 dash by S. आपने अभी देखा rotor resistance is R2 dash by S, and S is negative. S is negative क्यों? Rotor is running at a 1500 RPM, and rotor is running at a 1500 RPM, and stator flux is running only less than this 35 hertz के accordingly. So and means 120 35 by 50 ये उसका
स्टेटर फ्लक्स हो गया. सो S is negative. Because of this negative, the rotor resistance is negative and this will behave as a इंडक्शन जनरेटर. और जो हमारा सिंक्रोनस जनरेटर था वो सिंक्रोनस जनरेटर तो है ही, क्योंकि उसमें वो भी है, स्टेटर फ्लक्स 50 हर्ट्ज वाला भी है, रोटेटिंग फ्लक्स, और इसकी वजह से एक इंडक्शन जनरेटर की तरह भी काम कर रहा है. और बिकॉज ऑफ दैट इट विल सप्लाई द पावर टू द ग्रिड एट व्हाट फ्रीक्वेंसी, एट द ओमेगा एन फ्रीक्वेंसी. ओमेगा एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ 35 हर्ट्ज. 35 हर्ट्ज पे अगर 50% कंपनसेशन था तो एनर्जी उसको ट्रांसफर करेगा ग्रिड को. और अगर ये ग्रिड को ट्रांसफर करेगा तो एक तो ये ग्रिड पे 35 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर करेगा. एंड दूसरा प्रॉब्लम क्या था? दूसरा प्रॉब्लम है आपका ये, बिकॉज ऑफ द आर इज नेगेटिव. ये तो ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस 35 हर्ट्ज पे ये सिग्नल 35 हर्ट्ज का सिग्नल ये ट्रांसफर करेगा. इसके अलावा आर इज नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव, सो दिस विल बी ग्रोइंग ऑसिलेशन. इंडक्शन जनरेटर होगा और इंडक्शन जनरेटर के अलावा ये ग्रो करता जाएगा सिग्नल, ये करंट का सिग्नल ये ग्रो करता जाएगा. सो व्हेन द सिग्नल करंट, वी कैन नॉट ड्रॉ इनफाइनाइट करंट फ्रॉम एनी सिस्टम, दैट्स व्हाई इट इज अनस्टेबल सिस्टम एंड सिस्टम will be desynchronized. So because of this effect, this is called the induction generator effect. This is a induction generator effect and this is not allowed. Now another effect is the torsional effect. We have just seen the rotor current frequency is S into F, and this is given by this. Okay, F0 minus Fn. F0 is 50 हर्ट्ज और ये 35 हर्ट्ज, तो 15 हर्ट्ज हो गया ये पावर फ्रीक्वेंसी, और 50% अगर कंपनसेशन था तो ये हमारा हो गया 35 हर्ट्ज. तो ये F2 हो गया 15 हर्ट्ज. एंड दिस फ्रीक्वेंसी मींस 15, ये 15 है और वो 35 है. दैट्स व्हाई दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द कंप्लीमेंट ऑफ द पावर फ्रीक्वेंसी. दोनों फ्रीक्वेंसी का सम पावर फ्रीक्वेंसी के बराबर है. दैट्स व्हाई रोटर करंट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द कंप्लीमेंट ऑफ द पावर फ्रीक्वेंसी करंट. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, सिंस रोटर करंट फ्रीक्वेंसी इज दिस, दैट इज द कंप्लीमेंट ऑफ द पावर फ्रीक्वेंसी करंट, और इट इज ए 15 हर्ट्ज. सो टॉर्क इन द रोटर, जो करंट का फ्रीक्वेंसी होगा वही टॉर्क का फ्रीक्वेंसी होगा. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द टॉर्क on the shaft of the rotor is the 15 hertz. तो टॉर्क भी 15 हर्ट्ज का होगा. उसकी वजह से क्या होगा, तो 15 हर्ट्ज पे हमारा जो शाफ्ट है या रोटर है वो वाइब्रेट करने की कोशिश करेगा 15 हर्ट्ज पे. नाउ बिकॉज ऑफ दिस, नाउ इफ दिस फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी, 15 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, if this frequency called the 15 hertz frequency, which is the complement of the power frequency, if it is equal to the natural frequency of the mechanical system. अब देखो, अभी हमने आपको बताया था हर एक सिस्टम का अपना एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है. मतलब मैकेनिकल सिस्टम किस टाइप का है, मैकेनिकल सिस्टम देखिए हमने आपको बताया था से दिस टाइप ऑफ मैकेनिकल सिस्टम इज देयर, हाई प्रेशर टरबाइन, लो प्रेशर टरबाइन, जनरेटर, रोटर, एक्साइटर, एंड अगेन फर्दर मोर कंपोनेंट्स may be there like this. Generator, high pressure, low pressure, this is again of two type, and high pressure turbine size, low pressure turbine size, pressure V turbine size, generator size, having the spring constant, and this is the spring constant and inertia constant M. तो ये हमारा है. इसकी वजह से क्या होगा, एवरी सिस्टम हैज इट्स ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी. अगर यहाँ डिस्टरबेंस आया तो ये अपनी फ्रीक्वेंसी 2πm/k के अकॉर्डिंगली ये ऑसिलेट करेगा. ये अपने 2πm/k के बराबर के अकॉर्डिंगली ऑसिलेट करेगा. ये अपने 2πm/k के अंडर रूट के अकॉर्डिंगली, ये हर एक अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली इसमें ऑसिलेट करने की कोशिश करेगा. शाफ्ट ये अपनी इन दोनों के बीच का जो ऑसिलेशन है, फिर इसका और इसका ऑसिलेशन,
दे विल ट्राई टू ऑसिलेट विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, इसका आपस में इंटरेक्शन है वो ऑसिलेट करेगा, इसका इसके साथ इंटरेक्शन है, इसका इसके साथ, एवरीथिंग. सो देयर विल बी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस में बी पॉसिबल, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस में बी पॉसिबल हियर. ये शाफ्ट पे मींस ये सपोज इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, देयर कैन बी सम ट्विस्ट, देयर विल बी नंबर ऑफ ऑसिलेशन में बी देयर. नाउ बिकॉज ऑफ दैट, अब हमने देखा बिकॉज ऑफ द सीरीज कंपनसेशन हमारा एक एडिशनल सिग्नल था स्टेटर में, एंड बिकॉज ऑफ दैट रोटर में एक टॉर्क प्रोड्यूस हुआ जो जिसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है 50% पे 15 हर्ट्ज, एंड एट दैट 15 हर्ट्ज दिस फ्रीक्वेंसी, this electrical torque frequency may be equal to any of the frequency of this. इसके किसी भी सिग्नल, इसके किसी भी कंपोनेंट के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर अगर हो जाएगा तो ये यहाँ एक रेजोनेंस होगा, ये एक रेजोनेंस होगा. जैसे हमने कल बताया था ब्रिज के ऊपर जब सेना मार्च करती है तो सेना की ताल कदम की का फ्रीक्वेंसी ब्रिज के किसी कंपोनेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगा ओवरऑल, तो वो हमारा मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर करेगा जिससे उसके ब्रेक होने के चांस रहेंगे. ऐसे ही यहाँ इलेक्ट्रिकल का जो टॉर्क था वो किसी भी इसके बराबर होगा तो ये हमारा रेजोनेंस हो जाएगा. रेजोनेंस की वजह से इट विल ट्रांसफर मैक्सिमम एनर्जी एट दैट फ्रीक्वेंसी, 15 हर्ट्ज पे ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर करेगा. और एट दैट टाइम देयर कैन बी ग्रोइंग ऑसिलेशन, एज आई टोल्ड करंट भी बढ़ता जा रहा है, टॉर्क भी बढ़ता जा रहा है, तो ये जिसके साथ भी रेजोनेंस करेगा और जो कमजोर होगा, जो शाफ्ट जहां से कमजोर होगा वहीं से ये ब्रेक कर जाएगा. दिस इज कॉल्ड द टॉर्सनल इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड द टॉर्सनल इफेक्ट. So here this is the torsional interaction effect of the SSR, and because of this the generator shaft may break with disastrous consequences. जब शाफ्ट ब्रेक हो जाए तो बहुत बड़ा घटना हो जाता है, डिसास्टर, इट बिकम द डिसास्टर व्हेन शाफ्ट हैज ब्रेक इन. अगर हमारा बड़ा जनरेटर है, सपोज 500 मेगावाट का एमबीए का जनरेटर है और वो ब्रेक हो गया, तो व्हाट विल हैपन इमीडिएटली, अगर 500 मेगावाट सिस्टम से गायब हो गया तो पूरा का पूरा सिस्टम हमारा कोलैप्स हो जाएगा. तो एंड देखिए इमीडिएटली अगर ये सिस्टम ब्रेक ना भी हो, इवन इफ द ऑसिलेशंस आर नॉट अनस्टेबल, अगर एकदम से ब्रेक नहीं भी हो रहा है, बट डिस्टर्बेंस कैन रिजल्ट इन ट्रांजिएंट शाफ्ट टॉर्क ऑफ हाई मैग्नीट्यूड कॉजिंग लॉस ऑफ फटीग लाइफ ऑफ द शाफ्ट. तो लेकिन अगर एकदम से ब्रेक ना भी हुआ तो शाफ्ट का लाइफ fatigue, there will be lot of fatigue in the shaft and life of the shaft will be reduced. This phenomena has received much attention since the two incidences of generator shaft failure at Mojave Power Station in Nevada, Southern California, USA in 1970 and 71. मतलब ये 70-71 में जनरेटर का शाफ्ट फेलियर हुआ था, 70 और 71 में. Later on in 98 also this SSR phenomena happens in India. And then the whole the system collapsed, पूरा का पूरा हमारा सिस्टम कोलैप्स हो गया और एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए कंप्लीटली सप्लाई अवेलेबल नहीं हुआ. तो such is this phenomena is very important that whole of the country become the blackout completely. If it happens to be blackout, it is a big problem. So this has drawn a lot of attention. We need a lot of study to solve this such problem. देखिए एक तरफ तो हमने था ये why this SSR has happened, क्यों ये हो रहा है, इंडक्शन जनरेटर इफेक्ट हो या टॉर्सनल इफेक्ट हो, ये क्यों हो रहा है, बिकॉज द सीरीज कंपनसेशन और शंट कंपनसेशन हैज मेड. और सीरीज शंट कंपनसेशन क्यों किया था, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए. तो एक बेनिफिट लेने के लिए हमें दूसरी कंसिक्वेंसेस को झेलना पड़ा. तो वी हैव टू नाउ have sufficient research so that to overcome the SSR phenomena. SSR phenomena को overcome कर पाए तभी हम सीरीज और शंट कंपनसेशन का बेनिफिट ले पाएंगे. Now what is this? This we have shown the different level of compensation. अगर हमारा suppose 80% compensation, here it is 50% compensation, here it is 80% compensation. अगर हमने 80% compensation करें, अगर 80% कंपनसेशन करें तो 44 हर्ज, 80% पे हमने बताया था आपको
80% कंपनसेशन करें तो 44 हर्ट्ज का 44.5 हर्ट्ज का सिग्नल रोटर में होगा। तो और उधर सॉरी सिग्नल स्टेटर में होगा, और रोटर में जो सिग्नल होगा, रोटर में जो टॉर्क होगा वो कितना होगा 50 माइनस दैट 5.5 हर्ट्ज का सिग्नल हमारा रोटर टॉर्क में होगा। तो उस समय रोटर टॉर्क में तो ये हमारा दीज आर द डिफरेंट मोड, तो ये हमारा दिस मोड 1, उस समय मोड 1 बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो ये वाली जिसमें मोड 1 आएगा ये वाली सॉफ्ट ब्रेक होने के चांस ज्यादा है। 50% पे ये मोड 3 का ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा है। ऐसे ही इतने परसेंट सीरीज कंपनसेशन पे ये यू कैन से 30% पे मोड 4 का ब्रेक होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। बट व्हाट इज द लेवल ऑफ सीरीज कंपनसेशन, दिस वी एक्चुअली डोंट नो। अभी हमने कहा कि 50% कंपनसेशन है या 30% है 20% है। हमने क्या किया था, इस फॉर्मूला में रख के, इस फॉर्मूला में इसमें रख के XC/XL ये निकाला था 30% एंड 40% एंड 50% कंपनसेशन है। बट सिंस XL इज नॉट, XL क्या है, इट इज ए रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, XL इज द रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। नाउ डिस्टरबेंस, अगर हमारा फॉल्ट डिस्टरबेंस इज ऑफ टाइप फॉल्ट, तो ट्रांसमिशन लाइन पे फॉल्ट कहाँ पे हुआ है इफ वी डोंट नो। अगर मान लो रिसीविंग एंड पे हुआ तो पूरा का पूरा XL की वैल्यू आ गई। अगर हमारा बीच में ट्रांसमिशन लाइन के बीच में अगर हुआ तो XL की वैल्यू कम हो गई, 50 रह गई। तो XL की वैल्यू चेंज हो रही है डिपेंडिंग अपॉन, जहां पे अभी फॉल्ट कहीं पे भी हो सकता है, तो फॉल्ट कहीं पे हो सकता है तो XL की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जब XL की वैल्यू कुछ भी हो सकती है तो कंपनसेशन का परसेंटेज इसके अकॉर्डिंगली कुछ भी निकलेगा। तो FN कुछ भी हो सकता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी कुछ होगा तो इट्स कंप्लीमेंट फ्रीक्वेंसी दिस ऑन द रोटर विल आल्सो बी एनीथिंग। सो वी डोंट एक्चुअली नो व्हाट इज द rotator flux frequency and what is the rotor side frequency and what is the level of compensation. So anything may happen, any of the because of any of the mode, any of the shaft may break. ये इसका practical, we have taken some practical data. One that here in one of the example here it is considered that a rotor of a synchronous generator is of 555 MVA का जनरेटर था, इतना आरपीएम स्पीड है। ये 3600 आरपीएम क्यों कहा है, बिकॉज 60 हर्ट्ज, ये यूएसए का डाटा लेते हैं, सो 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली ये हमारा आरपीएम है। एंड फोजाइल फ्यूल टाइप ऑफ जनरेटिंग यूनिट है, उसका इनर्शिया कांस्टेंट, एवरीथिंग इज नोन। इन दैट केस इफ वी सॉल्व, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, सो इफ वी नो एवरीथिंग, तो दीज आर द डिफरेंट मोड्स। डिफरेंट मोड मींस अब आपका हाई प्रेशर टरबाइन है, इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन है, लो प्रेशर टरबाइन है, लो प्रेशर ए एंड बी एंड जनरेटर, इस टाइप के हमारे जनरेटर का ये रोटर है। तो ये देखिए, अगर ये लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी बहुत, लेवल ऑफ कंपनसेशन बहुत कम है, अगर लेवल ऑफ कंपनसेशन अगर सपोज ऐसा हमने बताया आपको, अगर लेवल ऑफ कंपनसेशन सपोज 80% था तो स्टेटर फ्लक्स 44 हर्ट्ज हुआ, स्टेटर फ्लक्स 44 हुआ तो 6 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रोटर साइड में होगी। तो ये फ्रीक्वेंसी रोटर साइड की फ्रीक्वेंसी है। तो ये वाला ये सॉरी हाँ, तो उस केस में क्या हो गया, अगर हमने 60 को वो माना है, इफ द 60 हर्ट्ज इज द पावर फ्रीक्वेंसी, तो 16 हर्ट्ज हो गया। तो ये हाई प्रेशर वाला टरबाइन था, वो ऐसा ऑसिलेट करेगा यहाँ पे इतने मैग्नीट्यूड से। इंटरमीडिएट प्रेशर वाला था, इतने मैग्नीट्यूड से ऑसिलेट करेगा। लो प्रेशर ये वाला ये मैग्नीट्यूड करेगा, ये वाला ये। तो दिस इज द टॉर्क प्रोड्यूस। अगर लेवल ऑफ कंपनसेशन इसके अकॉर्डिंगली है, सो एट different level of compensation there can be, you can put 10% series compensation, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, different compensation का आप लेंगे। and accordingly if this is plotted, they can be different modes। means क्या हुआ, देखिए यहाँ पे, यहाँ मैग्नीट्यूड क्या है, अगर हमारा 44 हर्ट्ज ये तो इसके अकॉर्डिंगली अगर रोटर की करंट ये है तो स्टेटर की करंट क्या होगी, से 5 हर्ट्ज, ये है ना, तो 6 हर्ट्ज की अगर रोटर करंट है
तो उसके अकॉर्डिंगली अगर कंपनसेशन किया गया है तो ये वाली सॉफ्ट ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ये पहले ब्रेक हो मींस इससे क्या है, देखिए इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन ये अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, लो प्रेशर ए ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब क्या शाफ्ट के अंदर ट्विस्ट आ रहा है, शाफ्ट ऐसे रोटेट कर रहा है कि इसमें ट्विस्ट है, दोनों एक डायरेक्शन में नहीं है। और इवन इफ एक ही डायरेक्शन में, सपोज ये और ये एक ही डायरेक्शन में है, तो ये वाला हाई प्रेशर टरबाइन ज्यादा घूम गया पावर एंगल और ये कम घूमा, तो ये ट्विस्ट यहाँ भी ट्विस्ट आया। तो ये दिस ट्विस्ट इज बिगर, इट इज ए बिगेस्ट ट्विस्ट। इसमें देखिए ये पॉजिटिव साइड में, ये नेगेटिव साइड में, दिस ट्विस्ट इज द बिगर, तो इसकी वजह से ये वाली सॉफ्ट ब्रेक होने के चांस हो गए। सो डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ कंपनसेशन एनी ऑफ द shaft here, this any of the shaft may break. So similarly the other data has also been shown here. You see the other data, this is data of the another generator. तो इसमें इसका एक्सपेरिमेंट प्लॉट किया तो ये आ गया टॉर्सनल नेचुरल ऑसिलेशंस, इट इज द 96 MVA 1800 RPM टरबाइन जनरेटर है, तो उसका ये डाटा आ गया। इसी तरह डिफरेंट डाटा के साथ डिफरेंट ग्राफ प्लॉट किए गए हैं। नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू सॉल्व, ये आया कैसे, हाउ इट केम, ये आया कैसे, कौन सा ब्रेक होगा, और देन क्वेश्चन इज व्हाट इज द सॉल्यूशन, हम उसको सॉल्व कैसे करें। तो दीज आर द वेरियस एनालिसिस मेथड ऑफ एनालिसिस, हम पूरे सिस्टम को कैसे एनालाइज करें, पूरे सिस्टम को स्टडी कैसे करें, उसकी एनालिसिस कैसे करें, उसके लिए हम दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स, these are the different methods of analysis: eigenvalue analysis, frequency scanning analysis, frequency resonance, frequency response analysis of full system, approximate frequency domain analysis, time domain analysis. तो आइगन वैल्यू एनालिसिस में हम क्या करते हैं, पूरे सिस्टम का स्टेट स्पेस मॉडल बनाते हैं। वी डेवलप द स्टेट स्पेस मॉडल ऑफ द सिस्टम, जैसे हमने लोड फ्रीक्वेंसी में देखा, लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल जब स्टडी किया था तो सिस्टम स्टेट स्पेस मॉडल देखा बनाते हैं। इन द सेम वे वी कैन मेक द स्टेट स्पेस एनालिसिस ऑफ दिस सिस्टम आल्सो। इज देयर एनी क्वेश्चन अप टू नाउ? यस प्लीज, एनीवन? हाँ, तो देखिए हमने पूरे, जैसे हमने लोड फ्रीक्वेंसी में क्या लिखा था, सबकी इक्वेशन लिखते थे और ओवरऑल सिस्टम मॉडल बनाते थे, ऐसे ही इसमें सभी की इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन किसकी? हर एक शाफ्ट की इक्वेशन लिखेंगे, हर एक जितनी शाफ्ट है हर एक शाफ्ट की इक्वेशन, हर एक इनर्शिया की इक्वेशन, रोटर की इक्वेशन, और ट्रांसमिशन साइड में ट्रांसमिशन लाइन की इक्वेशंस, उसमें भी फर्दर अगर कैपेसिटर कनेक्टेड है तो कैपेसिटेंस की इक्वेशन, और भी कोई डिवाइस कनेक्टेड है सबकी इक्वेशन लिख के उसको पार्शियल उसकी डिफरेंशिएशन इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी, उसके अकॉर्डिंगली सिस्टम मॉडल डेवलप किया जाएगा, स्टेट स्पेस मॉडल। और फिर उसकी आइगन वैल्यू एनालिसिस, आइगन ए, मैटलैब में कमांड होता है आइगन ए करेंगे तो उसकी आइगन वैल्यूज आ जाएंगी। व्हाट आर द आइगन वैल्यूज? आइगन वैल्यूज क्या होते हैं, आपने कंट्रोल सिस्टम में पढ़ा होगा। यस तनु नरवाल, व्हाट डू मीन बाय आइगन वैल्यूज? कंट्रोल सिस्टम में जब हम पढ़ते हैं आइगन वैल्यूज, उसका मतलब क्या है? हेलो मिस तनु नरवाल, आर यू लिसनिंग मी? तनु, तरुण सागवान, नोट लाइन पे नहीं है। हाँ, तनु एंड तरुण, ये तरुण सागवान, तनु तो है ही नहीं। तरुण सागवान, आर यू लिसनिंग मी? आप लिसनिंग मोड में हैं कि नहीं है? पवन? यस सर। हाँ, देखिए ये लोग लिसनिंग मोड में ही नहीं होते हैं तो क्या क्या इन्हें समझ में आएगा? पवन आप बताओ, कंट्रोल सिस्टम में आइगन वैल्यूज क्या रिप्रेजेंट करते हैं? व्हाट डू मीन बाय आइगन वैल्यूज ऑफ द सिस्टम? आइगन वैल्यूज क्या बताती हैं?
आइगन वैल्यूज, हाँ बता सकते हैं? कंट्रोल में पढ़ा है कि नहीं आइगन वैल्यूज, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग में? यस सर, पढ़ा तो है सर, पता नहीं लेकिन हाँ, अभी। पता नहीं है? रवि यादव, रवि कोई लाइन पे ही नहीं है, फिर मैं वैसे ही बोले जा रहा हूँ क्या? प्रैक्टिस इक्वेशन नहीं की सर, सॉल्यूशन। रेज द हैंड, सभी लोग अपना अपना हाथ उठाना। यस सर। हाँ, यस सर। कितने हैं? 1 2 3 बस। अच्छा, ये पवन जगवीर ये सब कितने, 50% से कम लोग लिसनिंग मोड में हैं। देखिए 3 3 6 आउट ऑफ 12 ओनली 6 आर इन द लिसनिंग मोड, और ये सब ऐसे ही है। बताइए इनका क्या करें? ओके, सो आइगन वैल्यूज आर नथिंग बट दीज आर द रूट्स ऑफ द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जो हमारे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है उसके रूट्स हैं। रूट्स का मतलब क्या है? जब हम एस प्लेन में रूट्स मतलब जैसे -2 + 3j प्लॉट करते हैं, तो जो माइनस साइज में जो रूट्स होते हैं वो ये बताते हैं सिस्टम स्टेबल है। अगर एनी ऑफ द रूट इज ऑन द राइट हैंड साइड तो सिस्टम हमारा अनस्टेबल है। तो हमें ये पता लग जाता है सिस्टम हमारा स्टेबल है या अनस्टेबल है आइगन वैल्यू एनालिसिस से। देन अनदर मेथड इज द फ्रीक्वेंसी स्कैनिंग। इसमें क्या करते हैं, इक्विवेलेंट इंपीडेंस इज सीन फ्रॉम द इंटरनल बसेस ऑफ द जनरेटर। जनरेटर की तरफ से नेटवर्क को देख के हर एक की इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकालते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर ये मान के चलते हैं अगर फ्रीक्वेंसी 10 हर्ज है नेचुरल कंपोनेंट, तो इंपीडेंस क्या होगी? इफ फ्रीक्वेंसी इज 12 हर्ज तो इंपीडेंस क्या होगी? इफ द फ्रीक्वेंसी इज 20 हर्ज तो इक्विवेलेंट इंपीडेंस क्या होगी? ऐसा हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए जो पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज हैं, पोटेंशियल फ्रीक्वेंसीज हैं, उसके लिए हम इंपीडेंस निकाल के और देखते हैं कब रेजोनेंस हो रहा है। मींस XL = XC वाला कंपोनेंट यहाँ लगाते हैं और देखते हैं कब किस फ्रीक्वेंसी पे ये हो सकता है। तो इन दिस वे वी स्टडी द SSR। इसमें प्रिलिमिनरी एनालिसिस के लिए ये करते हैं। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ फुल सिस्टम मतलब हमने स्टेबिलिटी अगर देखना है तो नाइक्विस्ट क्राइटेरिया से नाइक्विस्ट प्लॉट करते हैं। एक तो जैसे हमारे बॉडी प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट, तो आपने कंट्रोल में पढ़ा है। नाइक्विस्ट प्लॉट करने के बाद में हम ये देखते हैं सिस्टम हमारा स्टेबल है क्या नहीं है। Then another method is the approximate frequency domain analysis. This method analyzes the stability of individual torsional mode. अभी हमने आपको बताया मोड 1, मोड 0, मोड 2, मोड 3, मोड 4, मोड 5, ये डिफरेंट मोड्स हैं। तो एक एक मोड को स्टडी करते हैं। जो मोड ज्यादा मोस्ट सीवियर मोड पता लगे उसको स्टडी करते हैं इसमें कि भाई मोड 1 का क्या इफेक्ट है सेपरेटली, मोड 2 का क्या इफेक्ट है। देन इट इज ए टाइम डोमेन एनालिसिस। टाइम डोमेन एनालिसिस मींस हमने प्लॉट करते हैं टाइम वर्सेस टॉर्क प्लॉट करते हैं। कैसे? देखिए टाइम वर्सेस टॉर्क को इस टाइप से टाइम वर्सेस टॉर्क। ये टॉर्क है, टॉर्क कितना था, ये टॉर्क बढ़ता जा रहा है। टाइम के अकॉर्डिंगली टॉर्क ये बढ़ रहा है और अनस्टेबल हो रहा है। तो ये है हमारा टॉर्क अनस्टेबल हो रहा है, इसका मतलब टॉर्क हमारे साथ ब्रेक करेगी। ये कौन सा टॉर्क है? ये सभी टॉर्क, हाई प्रेशर इंटरमीडिएट प्रेशर के बीच का टॉर्क इस टाइप का हो गया। सपोज दिस इज टॉर्क, दिस इज अनदर। तो डिफरेंट मीन्स हाई प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में, लो प्रेशर और जनरेटर के बीच में, ऐसे डिफरेंट टॉर्क को स्टडी करते हैं कि ये हमारा सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। ओके, तो ये इस टाइप का टाइम डोमेन एनालिसिस। इसके लिए हमने आइगन वेक्टर निकाल के, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर या EMTP सॉफ्टवेयर के थ्रू या मैटलैब प्रोग्राम के थ्रू हम इसको टाइम डोमेन एनालिसिस करते हैं। नाउ
इसको एनालिसिस, दिस इज वन मेथड, दिस इज क्राइटेरिया ऑफ सॉल्विंग द सिस्टम, हमने सिस्टम को कैसे सॉल्व करना है. So these are the different methods we can study, we can learn some of the methods, but the question is not to only understand the method of analysis, but the question is whether we are able to counter measure the SSR. हमने SSR को डैम्प कर सकते हैं कि नहीं, how to damp subsynchronous resonances, how to mitigate subsynchronous resonances, how to remove these resonances. हम ये जो अनवांटेड ऑसिलेशंस आ रहे हैं, सब सिंक्रोनस लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन है, उसको हम कैसे मिनिमाइज करें. तो व्हाट आर द टेक्निक्स, these techniques are called as a counter measures of SSR. इसमें देखिए some of the technique is the static filter. इसमें क्या करते हैं, स्टैटिक फिल्टर में हमने जनरेटर और ट्रांसमिशन लाइन के बीच में एक पैरेलल रेजोनेंस टाइप सर्किट लगाते हैं. रेजोनेंस मींस एलसी सर्किट लगा दिया, एलसी फिल्टर, रेजोनेंस फिल्टर, दैट इज द एलसी फिल्टर, स्टैटिक फिल्टर लगा दिया जनरेटर और ट्रांसमिशन लाइन के बीच में. ये क्या करेगा, इट विल नॉट अलाउ टू फ्लो दिस. देखिए जो रेजोनेंस एक्सी बाई एक्सएल की वजह से जो सब सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी था वो हमारा ट्रांसमिशन लाइन से जनरेटर में जा रहा है. तो अगर बीच में ये फिल्टर लगा हुआ है तो इट विल ब्लॉक दिस कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल कंपोनेंट टू पास थ्रू द जनरेटर. इसको पास नहीं होने देगा. तो दिस इज कॉल्ड दिस टाइप ऑफ criteria is the static filter. Another is the dynamic filter. Dynamic filter means active device लगाते हैं सीरीज विद द जनरेटर. जनरेटर के सीरीज में एक्टिव डिवाइस लगाया. एक्टिव डिवाइस क्या करेगा कि जो टॉर्सनल ऑसिलेशंस आ, टॉर्सनल ऑसिलेशन कहाँ है, रोटर में. रोटर से जो टॉर्सनल ऑसिलेशन आ रहे हैं उससे एक सिग्नल लेगा और उस सिग्नल को लेके ये एक्टिव डिवाइस है एक वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा इन फेस अपोजिशन टू द वोल्टेज प्रोड्यूस्ड. जो वोल्टेज ये इसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा था, एसएसआर की वजह से प्रोड्यूस हो रहा था, उसके अगेंस्ट उसी मैग्नीट्यूड का एक नेगेटिव वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा. एंड दैट विल, सिंस इट इज गवर्न फ्रॉम, जितना हमारा टॉर्क डिस्टर्बेंस ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंगली ये वोल्टेज प्रोड्यूस कर देगा. सच टाइप ऑफ मेथड may be used to counter the SSR. This is called as a dynamic filter. Then dynamic stabilizer. Dynamic stabilizer ये थारिस्टर कंट्रोल्ड शंट रिएक्टर्स कनेक्टेड टू द जनरेटर टर्मिनल. जो शंट, देखो सीरीज में या शंट में रिएक्टेंस लगा देते हैं और उसमें थारिस्टर के अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू कंट्रोल करते हैं. एक्स की वैल्यू कंट्रोल करेंगे सो दैट द एक्स की वैल्यू कैसे करेंगे, फायरिंग एंगल ऑफ द थारिस्टर. और उसका फायरिंग एंगल कहां से लाएंगे, फ्रॉम द जनरेटर शाफ्ट स्पीड, क्योंकि वो जनरेटर के शाफ्ट के प्रोपोर्शनेट चाहिए. जितना ज्यादा टॉर्क डिस्टर्बेंस हो रहा है उसकी अकॉर्डिंगली हमारा वो फायरिंग एंगल कंट्रोल होगा. सो दैट द रिएक्टेंस कैन बी कंटिन्यूअसली मॉनिटर एंड चेंज. उसकी रिएक्टेंस को ओवर ट्रांसमिशन लाइन की रिएक्टेंस, बिकॉज ट्रांसमिशन लाइन की रिएक्टेंस से ही हमारा FN आ रहा था, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपोनेंट ऑफ करंट आ रहा था. Another method is the excitation system damper. Generator excitation control is modulated by using signal derived from the shaft speed so as to provide increased damping of the torsional oscillation. हमारा एक्साइटेशन, फील्ड एक्साइटेशन किस लिए करते हैं, वोल्टेज कंट्रोल के लिए. तो एक्साइटेशन कंट्रोल करेंगे तो वोल्टेज कंट्रोल होगा. वोल्टेज कंट्रोल करने से हमने वो वाला सिग्नल नेचुरल फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली जो वोल्टेज आ रहा है उसको हम कंट्रोल करेंगे. दिस इज ए प्रोटेक्टिव रिले बेस्ड. सो हियर एसएसआर कंडीशन इज डिटेक्टेड बाय द रिले. अगर कंटिन्यूअसली शाफ्ट पे एक रिले लगा है, वो डिटेक्ट कर रहा है कि भाई देयर इज ऑसिलेशंस और नॉट, टॉर्सनल ऑसिलेशंस आर देयर और नॉट. क्योंकि आपने देखा टॉर्क का ऐसा सिग्नल, टॉर्सनल टॉर्क बढ़ता जा रहा है तो उसको वहां सेंस करेगा और जो अफेक्टेड यूनिट्स हैं उनको ट्रिप कर देगा. तो दिस इज द प्रोटेक्टिव रिले मेथड ऑफ हैंडलिंग द प्रॉब्लम. दिस इज एनजीएस स्कीम. एनजीएस मीन्स हिंगोरानी, जी हिंगोरानी. दिस इज वन बुक, फैक्ट्स की जो आपने बुक पढ़ी है, NG हिंगोरानी बुक, ही इज द ऑथर ऑफ दैट बुक. उसने एक जो स्कीम दिया था
उसने द कंसिस्ट ऑफ लीनियर रेजिस्टेंस इन सीरीज विद बैक टू बैक थायरिस्टर। जो थायरिस्टर्स हमारे लगे हैं उसके सीरीज में, जो हमारा सीरीज कंपनसेशन से हमने ट्रांसमिशन लाइन का कंपनसेशन किया था, उसके साथ में एक रेजिस्टेंस और लगाया है, और वो रेजिस्टेंस थायरिस्टर के अकॉर्डिंगली थायरिस्टर भी लगे हैं। तो रेजिस्टेंस इज कंट्रोल्ड टू डैम्प आउट द रेजिस्टेंस। अगर हमने एक्सेल और रेजिस्टेंस और लगा दिया तो एक्सेल बाई आर डैम्पिंग, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे तो डैम्पिंग बढ़ता जाएगा, डैम्पिंग बढ़ेगा तो जल्दी से डिके हो जाएगा। तो ये मेथड था, लेकिन इसमें ड्रॉबैक भी है, देयर आर लॉट ऑफ लॉसेस भी होगा सिस्टम के अंदर, एनर्जी लॉस होगा। सो दीज आर द फ्यू मेथड्स ऑफ हैंडलिंग द सब सिंक्रोनस रेजोनेंस प्रॉब्लम ऑफ द सिस्टम। तो इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है, एनीबडी, एनी क्वेरी, इफ यू हैव यू कैन आस्क। कुछ पूछना है इसमें? यस प्लीज। हाउ मेनी ऑफ यू आर इन द लिसनिंग मोड? यस, से यस। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो 5 मिनट और ले लें या क्लास को क्लोज करें? नेक्स्ट क्लास में बताएं। Next में. ओके नेक्स्ट में कर लेते हैं। okay. So this is over. If you have question up to now, you can ask. And सर एक क्वेश्चन था। अच्छा, 1 मिनट। इसी के अंदर है क्वेश्चन या इससे हटके है? अलग है सर, इससे अलग है सर। इससे अलग है तो ओके, हाँ सर। वी कैन